Hello and welcome to Industries Helping Hands. We welcome you to the Talk with Industry Expert session, where in this video we are going to have a conversation with an electric vehicle industry expert, Raj Mehta, world's youngest founder of automobile company Greta Electric Scooters. He was active in the EV segment from the age of 13 years. With the vision of motion without pollution, he founded Raj Electromotives at the age of 14. Delivered green technology to 19 states of India and across the globe and going on. He got featured in Indian media by newspapers, news channels, FM magazines at the age of 14. At the age of 17 years, he was rejected 19 times to get the export-import license. But he never stopped and tried again and became India's youngest entrepreneur who get the export and import license. हिंदुस्तान का वो लड़का जिसकी उम्र बहुत छोटी है पर सपने काफी बड़े हैं और उनको पूरा करने का जज्बा उम्र से ज्यादा बड़ा है। केवल 19 साल की उम्र में कंपनी बनाने की कहानी, ये कहानी है संघर्षों की, सपनों की और सफलता की। There was a time in his life when he was even ready to serve the tea just to earn rupees 8,000 for building the product. So it's an amazing and inspiring journey of taking a loan of rupees 8,000 from his grandfather to building an amazing electric vehicle company, Greta Electric Scooters. It's a journey of a 21-year-old young entrepreneur of India who is in a mission of Make in India, Make for India product. Till date, he powered 1,400 plus bicycles on road of India, 1,000 plus bikes converted from gasoline to electric, 600 plus rickshaws loading passengers, 30 plus handicapped tricycle and will keep serving the green technology. The youth of our country can take inspiration from this story and create their story of success also. Industries Helping Hands is on the mission to upskill the students of the country and make them industry ready. If you want to know more about the electric vehicle courses, you can visit our website industrieshelpinghands.com and you can also install our mobile application. And for more updates, you can join our WhatsApp group and Telegram channel. The link is in the below description box. So let's start this talk session and learn from this inspiring journey. My age was 17. And I got the import-export license. The commissioner had congratulated me, and then he said that, Raj, you are the India's youngest person to get import-export license. But how did you manage that? And then I had replied him that, sir, because I never lost my hope. I rejected 19 times, and the 20th time I got approved by you. When the curiosity gets cured, innovation takes birth. Means कि जिज्ञासा का समाधान एक आविष्कार को जन्म देता है। अगर किसी की जिज्ञासा है, आपने उसको समाधान दिया है, मीन्स उसका क्यूरियोसिटी आपने क्योर किया है, तो डेफिनेटली इट हैव दैट कैपेबिलिटीज टू बर्थ एन इनोवेशन, क्योंकि वही क्यूरियोसिटी क्योर करके उसको इनोवेशन आइडिया आएगा कि यार ये चीज का समाधान तो यहीं से हो गया। एंड इनोवेशन इज लाइक द सेम थिंग, यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ पीपल लाइफ and provide the solution, the unique solution कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं ढूंढा है. When I was in the 9th standard, in the 9th, I gave my life's first news interview. घर पे गया, घर पे जाके पापा को बोला, पापा मेरा जॉब लग गया, मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए. तो पापा बोला, गुड, काफी बढ़िया, कहाँ पे लगा? मैं चाय का दुकान में नौकरी लग गया. तो he said कि ठीक है, अच्छा है, कितना कमा लोगे? तो मैंने बोला यार 4,000 तो महीने का मिलेगा. So he said, okay, that's good. We started a new factory in Faridabad. That is also challenge to me because मेरे लिए फरीदाबाद एक ओपन लैंड ग्रीन फील्ड था जहाँ पे मैंने शुरू करना था प्लांट को. एंड अहमदाबाद में भी जो मैंने प्लांट अपना सेटअप किया यहाँ पे, तो that time my age was like very minor and I never consider my age because I have the thoughts to be more than my age. So always I think that if I can think, I can do it. If you are not able to think, you cannot do it. तो अगर सोचा है तो उसको करना है. एंड मेरा लाइफ में या मेरा ब्लड लाइंस में भी किसी को अनुभव नहीं है फैक्ट्री सेट करने का. बट आई टुक 4 years to set my factory in Ahmedabad. Parallelly, in the 3 months, I selected the land, and from the finalizing to the land to the making a factory operational, I did it in the Faridabad. मेरा recent assignment कि जो मैंने ग्राउंड फील्ड जीरो, मैं फरीदाबाद गया हूँ मेरा बैग पैक करके, अब मुझे फैक्ट्री सेट करके ही आना है.
एंड 93-94 डेज स्पेंड किया, मेरा फैक्ट्री वहां पे आज प्रोडक्शन दे रहा है. Hello and welcome to the Industries Expert Talk session. Today we are having with us our very special guest, one of the dynamic leader and I would say world's youngest founder of the automobile company Greta Scooters. His journey itself is so inspiring, like words fall short to describe his journey. So, a very warm welcome to you, Raj sir. Your journey is incredible, and thank you so much for joining us today. Yeah, it's my pleasure to be here on the platform. Thanks for inviting me. So basically, I would like to say to our student community across India, this interview talk session not only just inspires you, but it provides you the way of learning. I would like to share some of the things that I know about the journey of Raj sir at the age of 13, when kids usually in class 7th or class 8 used to go to the school with the bicycles, but at that age, he just started making the conversion kits for the bicycles, and it's a leading step towards the electric mobility from the very young age. At the age of 14, he founded a company. When the kids were in the school, he founded a company that is Raj Automotive. And at the age of 17, he is the world's youngest founder of the automobile sector who got the license of export and import at the age of 17, even before his class 12. And then after, he started his new venture, Greta Electric Scooters, in 2019. And after that, his journey is so inspiring, from right from the scratch to building a big company. And right now, the most amazing fact is that he is still a student. That would be the most amazing thing. He is the final year student, I think, in the BTech, right? So his journey is so much of like inspiration as well as motivation. We would definitely in this talk session going to know and about more of his journey. But behind all these fancy tags and titles of like world's youngest founder and everything, there is a story of lot of struggles, failures, and again coming back into the field with the same enthusiasm and energy. So definitely in this session, we are going to unfold all these things. I would like to know from you, Raj sir, like we have heard this thing, the earlier the start, the better the things. So is it for you only to make these things, like the sooner you start, the better the things? So you have started these things from so early age. Please enlighten us with your journey, sir. So yeah, all right. So it's about how we perceive and how we take the quotes about the senior or the elders of the industry. So it's on us how we are taking their messages, their directions to work on. And there's just one correction. You had explained very well, but the company name which I founded, it is Raj Electromotives Private Limited. So it is a Raj Electromotives, and the word electromotives is uh, is derived from the word electric and automotive. So electromotives. So it is a word from the physics, and as I have desired to do something which have motion but have no pollution, so that it how come the electromotives. And yeah, definitely when I started my journey, my age was actually 12, but I have no certain proof rather than my wordings and few people who saw me when I started my work. But yeah, at age of 14, I got the news coverages across the India of ABP News, and there are much news portals who had covered my story when my age was actual 14. So yeah, for the people and for the world, yeah, it is 14. But for me, I started, I was 12. But yeah, it takes time to get into the public, and even now people are not aware about the fact, and that they usually sometimes get into shock that how an Indian can do. It's a German and European technology all over there in the auto sector, like the famous cars and whatever the car names you speak up, they are maybe Japanese or they are from German. So for people it's hard to accept that how an Indian, and they too a young lad, a young boy did this. So yeah, but anyhow, we used to do that, and the result is in front of everyone that yeah, I'm currently doing that. And I believe that we should focus on our goal and keep the perseverance with our constant positive energy, and the success always we achieve, because we need to have the patience. I will just share an incident that my age was 17,
and I got the import export license. The commissioner had congratulated me, and then he said that, Raj, you are the India's youngest person to get import export license. But how did you manage that? And then I had replied him that, sir, because I never lost my hope. I rejected 19 times, and the 20th time I got approved by you. So before that same day, that was my 20th visit to the commissioner office, and that two are from the different regions. So 19th time, my age was 16 and my age was 17. I spent 1 year and put 19 applications which I got rejected, and the 20th time I got approved. So it is a simple definition that how we succeed. People see that you are getting the approval in one go. They don't know what number of times you get the you get the efforts. आपने कितनी बार उसको effort दिया है. People don't know. People know the succeed number. Okay, he got succeeded. People see that who went first to the moon. They know the name. They don't know how many people had tried to be there, and how many people had failed there. But yeah, the world remembers you for your success. When you succeed, people knows that. So yeah, it is how we should. But I believe in perseverance with keeping the constant positive efforts. That is absolutely showing in your personality itself, sir. तो बेसिकली सर हम शुरुआत से शुरू करना चाहेंगे ताकि अगर ये हमारा जो कॉन्वर्सेशन है अगर टीयर 2 और टीयर 3 का स्टूडेंट भी कोई देखे तो उसको भी एक इंस्पिरेशन मिले कि जब किसी और स्टेट से गुजरात से ही कोई एक यंग एंटरप्रेन्योर बन सकता है तो वो क्यों ना इसके लिए कोशिश जरूर करे. तो बेसिकली सर हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने स्कूल के टाइम को अपनी मैनेज किया क्योंकि जब स्कूल स्टूडेंट सब होते हैं तो उनके लिए एग्जाम ही एक बहुत बड़ा लाइक चैलेंज होता है. इन सारी चीजों के बाद आपने जैसे शुरुआत की एक कंपनी बिल्ड करने को लेके तो हम शुरुआत से आपकी जर्नी जानना चाहेंगे सर एट द एज ऑफ 13-14 हाउ यू मैनेज योर स्कूल देन एवरीथिंग. Okay, so Swati, at that time, I was studying in standard 8, and my background is like I belong to a town. Its name is Santrampur. It is 170, 180 kilometers from Ahmedabad, Gujarat. Ahmedabad is like a very boosting city of Gujarat, and one of the growing city in India. Like the population itself is more than 10 million, and it's a biggest city of Gujarat. My hometown is Santrampur. It is like 170, 180 kilometers far away. And I changed more than 9 schools. Maybe I've been into 10 schools, 10 plus schools I've been till now. I'm not a stable person. And they're two in the different cities. Even though the another message I would like to give up the audience is that never be in the comfort zone. The reason I shifted the schools from one to another is never that the management had asked me to change over the school, but even my father had started the school. My sister, my real sister, studied 8 years in the same school. So there is nothing wrong with that school or that school's management or the quality of education. My sister self studied 8 years in the same school. I hardly spent 6 months. That too because of that namesake. कि what people will think of कि ये उसका पापा का स्कूल में भी नहीं पढ़ा और how about the school quality. But there I was getting into the comfort zone. Whenever if I'm making a mistake, I'm very assured that the principal or the school management will not say anything to me. He is worried कि एक तो गांव का माहौल जो रहता है वो बोलेगा कि यार एक तारीख को तनख्वाह तो लेनी है, अगर इसको कुछ छेड़छाड़ कर दिया तो अपना तनख्वाह चला जाए. मतलब सेठ के द ट्रस्टी ऑनर का लड़का है, उसको तो मिसट्रीट कर ही नहीं सकते. बट व्हेन दैट person is making a mistake, you should punish him because he is a student. स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म रखा जाता है टू मेक एवरीबडी यूनिफॉर्म, कि सभी लोग एक ही है. नोबडी इज अपर, नोबडी इज लोअर, एवरीबडी इज सेम. सो आई एम वियरिंग द यूनिफॉर्म, सो एवरीबडी इज सिमिलर. सो बट देयर आई वाज नॉट गेटिंग दैट फ्लेवर. वहां पे मेरी कुटाई नहीं हो रही थी. वहां पे ये था कि दे वर ट्रीटिंग लाइक दैट सर का लड़का है तो इसको तो स्पेशल ट्रीट है. इफ आई एम सेइंग सर 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 10, so he will say, okay, okay, good, sir, good, 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 5 star. But how if that table I speak up here, that calculation I do it in the real life now in these days, I will get failed, and people will make laugh of me that how is this person? He don't know basic mathematics. Similar way,
when I ask him that, sir, sun rises in the west, sets in the east, he have no problem to do with. He just know that one date, एक तारीख आएगा, एक तारीख को अपना तनख्वाह आना चाहिए, तो अभी तो जो है इसको अच्छे से रखो, पास ही करना है. But it is not good place for me to grow up. I had changed the school. I've been to Vadodara. I've been to Urmi School. It is in the Vadodara. Then I went to School of Achiever. It is in Gandhinagar. Then I completed my. So actually, my basic education is in the Gujarati medium. When I was a kid, my town have no English medium school where I belong to. And if I talk about my family background, they all are into the business. Means my grandfather, grandfather's grandfather, my father, they everybody they are into the business. We are like Baniya people, Jain Baniya people. So in Gujarati culture, most of Baniya people are into the business. You will not find any corporate guy here, and they usually are into the trading business. But we were into some like multiple of businesses like real estate and jewelry, retail, even we are into finance as well. And then after uh, when I was a kid, 1 year old, maybe 1 or 2 year old, an infant, that time in गांव में कल्चर क्या रहता है कि आपका अंदर घर है और बाहर ही आपका शॉप है, एस्टेब्लिशमेंट जो भी है. एंड एक छोटा सा गली रहता है, सामने दोनों घर, ऐसे दोनों घर होते हैं. सो घर के बाहर ही दुकान है. तो अभी आप स्कूल से घर पे आए हो या पूरा दिन है, तो यू एक किड, छोटा बच्चा, तो उसको तो कुछ हैपनिंग देखना अच्छा लगता है. तो आई यूज टू स्पेंड माई डेज लाइक दैट. मेरा जो बचपन है वो ऐसे ही गुजरा है कि अगर आप बाहर बैठे हो तो आई यूज टू मॉनिटर कि ये बंदे ने कुछ दिया है और हमने भी उसको कुछ दिया है. मीन्स आई डोंट नो व्हाट इट सेड, उसको क्या बोला जाता है, बट इसने कुछ दिया है और इसने पैक करके और कुछ दिया है, नॉट सेम थिंग, डिफरेंट. देन आई हैड आस्क्ड देम कि ये क्या होता है, तो बोला ये पैसा है, मीन्स इट इज अ करेंसी. इसको देने पर हमने इनको गोल्ड दिया है. तो मैंने बोला क्यों इतना ही दिया आपने, उतने उन्होंने तो इतना सारा पैसा दिया है, आपने क्यों इतना दिया. सो दे सेड कि नहीं, इसका भी एक अलग कैलकुलेशंस होता है. इट्स नथिंग लाइक कि कुछ भी दे दो. देन इट्स हाउ एवरीथिंग आई गेट इनटू द लर्निंग. मतलब ये बचपन से ऐसा ग्रूमिंग होता है. देन आफ्टर बोला कि इसको पढ़ लिख करके इसको सेट कर देंगे, अपना ही कंटिन्यू करेगा. आई डोंट हैव एनी अदर सिबलिंग्स. मीन्स आई हैव वन यंगर वन, वो भी तब तो नहीं थी, तो बाद में आई. तो तब बातें तो सुनते थे, तो लोग बोलते थे कि लाइक हाँ कोई नहीं, चलो बनिए का लड़का है, पढ़ लिख के यही सेट हो जाएगा, एक डिग्री विग्री ले लेंगे, बाकी तो अपना धंधा है, यही 150-200 साल पुराना है, कौन करेगा इसको. तो मैंने बोला ठीक है, ओके, आई विल कंटिन्यू दैट. बट दैट टाइम मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुआ. आई वेंट टू अ गुजराती मीडियम स्कूल. दैट वाज JH मेहता इंग्लिश गुजराती मीडियम स्कूल इन माय होम टाउन. वहाँ पे ना बैठने के लिए बेंच रहता है ना कुछ होता है. मीन्स ऑन द ग्राउंड यू सीट एंड मिड डे मील आएगा, उसको खाना है. देन सो इट इज हाउ आई माय जर्नी स्टार्टेड. नथिंग वाज इनटू द लग्जरी. एंड गांव के लिए वो भी लग्जरी होता है कि मीन्स बिजनेस डजंट मेक सेंस. आप 1 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, बट पढ़ाई के मामले में अभी भी गांव वैसे ही है. आज का तो काफी अब सुधार हुआ है. तो लाइक इन द मीन टाइम मेरा जो गांव है वहां पे दो ही चीज का लेग मुझे लगा. दैट इज वन द मेडिकल, अनदर वन इज द एजुकेशनल. इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी इट इज वेरी वेल, बिकॉज इट इज अ स्मॉल टाउन अक्रॉस ऑल द विलेजेस. तो पूरा विलेज का जो पब्लिक है वो वहीं पे आएगा. इट इज लाइक सेंटर हब टाउन कि आदमी परचेज करने आ रहा है, तो इकोनॉमी अच्छा है वहां पे. बट देर इज नो मेडिकल. अगर मुझे रात को हार्ट अटैक आता है तो देर इज नथिंग टू डू विद. सिमिलर वे में देर इज नथिंग. if I want to pursue my higher education studies, there is no option. There are government schools, but they are into the Gujarati medium, and they too, very badly to say that, but they too with a very poor quality of education. Now it's been improved very much. So that time Gujarati medium se padhai shuru hua. I completed my kindergarten in Gujarati medium. Then one school started, Mother Teresa. There I studied into maybe, yeah, I repeated my kindergarten that time. Either I would have completed my degree till now. And then after I completed 2 years, then Papa ने बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, and even the schools are not up to the mark. And as we are, God graced us with that capabilities, let's start a school. He started a school with very nominal fees, 300-400 rupee a month, maybe 200 rupee, where we used to give pencil and bags to the student as well. But we take admission on the basis of their merits, that कि अगर सही कर रहा है तो the even faculties are also very good. Means best of the quality को हमने उधर लिया था. And
the school was going in good motion that time. And then after in the fourth, I changed. Then I went to the Vadodara, and Vadodara is a Rumi school. Vadodara is a city near Ahmedabad. Then udhar bhi set nahi hua. So before I was into Central Board, it was into Gujarat Board. Then after I studied into the School of Achiever in the Gandhinagar. Then again I changed to the Gujarat board, and then seventh and eighth, sixth and seventh class, I studied again into Central Board, CBSE board. I scored 99.78 percentage at that time. So I was good in studying. Even right now, I used to manage my studies anyhow. I am able to manage 8 to 9 score. And then after I changed another. मेरे को hostel में नहीं रहना है. I don't like to be in hostel. Then again, I back to my hometown. So I completed my sixth and seventh from my home. I used to travel every day 30-40 kilometers to and from. And then after I came back again to Ahmedabad. मेरे को भी इधर नहीं रहना है अब Ahmedabad. There I been to ICSE international course. It is one of the leading school in the India, and you can say from the 19 countries the student appear there for the studies of 8, 9, 10 standards. And there also I not able to settle. It was a very far, but it is the time when my innovation had happened, because the distance of my school was 18 20 kilometers from my residence. I used to reside in my bua's home. तो मेरा बुआ का घर से वहाँ जाना, it was a long distance. And then after that evening when I come back to home, I used to go here and there for tuitions or for anywhere. I need to pedal the bicycle. And the innovation, like I have a like this Thomas Edison had said that आवश्यकता आविष्कार का जननी होता है. So necessity is the mother of invention. So at that time, my necessity was to commute with the ease. कि कोई भी इतना एफर्ट नहीं लगाना है. मतलब एफर्ट मीन्स एक आलसी लड़का है और ही वाज बोर्न इनटू दैट कल्चर. मतलब कंफर्ट ही उसको दिया गया था, बट ही यूज्ड टू गेट अवे फ्रॉम दैट कंफर्ट. तो आई सेड कि नहीं यार, मेरे को तो ये साइकिल है बट इसको एफर्टलेस करना है. सो दैट टाइम इट्स हाउ दैट इग्नाइट माइंड में इग्नाइट हुआ. And I used to get into the mechanics and the basic robotics कि ये कैसे होता है, वो कैसे होगा, questions पूछना. I was in the seventh when I asked my sir that seventh में था, मेरा age 12 का था उस time, in the Academic Heights Public School, and my teacher was there, Vijender sir. Vijender sir is my English teacher. But मैंने वैसे ही सर को पूछा कि सर ये बैटरी ऑन करते हैं, मोटर घूमता है, तो ये कैसे होता है, व्हाट इज द थिंग इन बिटवीन. ऐसा तो इस बैटरी में क्या है कि ये नॉन लिविंग थिंग है ये तो, बट हाउ दिस नॉन लिविंग थिंग गेट इनटू मूवमेंट. तब तो उतना टेक्निकल कुछ था ही नहीं, बट हाँ लिविंग नॉन लिविंग पता है. बोलता है सर वायर भी नॉन लिविंग है, ये बैटरी भी नॉन लिविंग है, बट हाउ दिस मोटर गेट इनटू द मोशन. तो सर ने बताया कि इट इज अ बैटरी, ये एनर्जी स्टोरेज होता है, इट इज अ डिवाइस विच वी यूज्ड टू. तो ये बैटरी का डेफिनेशन मेरा तभी क्लियर हो गया था. देन आफ्टर मेरा मोटर, मैंने बोला सर इसमें क्या होता है. तो बोला सर इसके अंदर कॉपर रहता है, इसमें मैग्नेट होता है, व्हेन यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसकी वजह से. बट दिस थिंग्स कुड बी स्टॉप्ड इफ ही सेड मी दैट राज, मैं तो इंग्लिश का टीचर हूं एंड यू आर इन दिस स्टैंडर्ड, यू नो नीड टू आस्क सच क्वेश्चंस, फोकस ऑन योर स्टडीज. सो अगर ये उन्होंने बोल दिया होता और मैं एकदम उसको ले लिया होता सीने पे कि यार ये तो सर ने डांट दिया, आप नहीं पूछना, तो आई वुड नेवर बी एट दिस पोजीशन, नेवर एट दिस phase. But by that I learned one thing, and I used to quote that quotation that when the curiosity gets cured, innovation takes birth. Means कि जिज्ञासा का समाधान एक आविष्कार को जन्म देता है. अगर किसी की जिज्ञासा है, आपने उसको समाधान दिया है, मीन्स उसका क्यूरियोसिटी आपने क्योर किया है, तो डेफिनेटली इट कैन इट हैव दैट कैपेबिलिटीज टू बर्थ एन इनोवेशन. क्योंकि वही क्यूरियोसिटी क्योर करके उसको इनोवेशन आइडिया आएगा कि यार ये चीज का समाधान तो यहीं से हो गया. एंड इनोवेशन इज लाइक द सेम थिंग, यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम ऑफ पीपल लाइफ एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन, द यूनिक सॉल्यूशन कि जो आज तक कभी किसी ने नहीं ढूंढा है, तभी तो प्रॉब्लम अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है. एंड देन आफ्टर माय जर्नी स्टार्टेड, then again I changed another school because I was not comfortable with that. कि I was much into the comfort zone कि ठीक है लाइफ चल रहा है अच्छे से, ICSE बोर्ड है, and in the academics I was very well.
So then after I get into again Gujarat board, मैंने life में ऐसा boards change किया है. Means Gujarati medium to English medium. In English medium I changed that Gujarat board, Central board, International board, and again Gujarat board. Then I been into the best school. The name is the best. And then I've been to Doon International School. It is in the Ahmedabad, the third school in Ahmedabad city. My family get settled here in Ahmedabad. And then after I took diploma. मुझे लगा कि अब डिप्लोमा ले लेंगे, कॉलेज लाइफ होगा और रोज का झंझट नहीं रहेगा. I took diploma. I completed 2 semesters with 90% of daily attendance, which was the highest ever in my life. And that committed me that Raj, okay, you come here. आपको third semester से हम लोग ये नहीं करेंगे, but for the first year you need to come regularly. I said okay, sir. And my education score was also good, 8.5 or 9 in that time. But at the third semester, they had asked me that Raj, you need to come regularly. And I said, sir, my business is already in the swing. How can I be here? It's not possible for me. And when I was in the 8th standard, I started my business. My news interviews get started into the publishing. Like when I was in the 9th standard, yeah, in the ninth, I gave my life's first news interview. My age was 14 that time, and yeah, on the 10th, my board exams were their SSC board exams. It is the time was very peak of my business. I was getting huge demand, and even I did press conference at that moment of time. I addressed the press conference with 36 number of media correspondents, which were delegating the 36 different news companies. And I was the person which was very shy to speak up. अभी तो जो बोलना आ रहा है एक अलग एनर्जी से निकल के आ रहा है. But I have that memory when I was in standard 1, there was some fancy dress competition. I went to the stage and get back down in my tears के अरे नहीं नहीं इतना सारा लोग हैं, मैं नहीं करेगा. And the highest public I had addressed, that is more than 20,000 people in a single rally. That was a political rally I had addressed. That was more than 20,000 people. And there is a certain turning point in the life where every fear get into the fun कि अरे ये तो एक टाइम था मैं डरता था इससे, but now it's fun. So when I was in giving my life's first news interview, I was very stumbled that मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये माइक कैमरा है इधर, मेरे को नहीं सही लगता है. He said, अब वो बंदा भी काफी सही था. He had encouraged me. He said that यार तुम वो तारक मेहता देखते हो? मैंने बोला हाँ, तारक मेहता सीरियल तो पता है मुझे, मैं देखता नहीं हूँ बट पता है. बोला उसमें वो लड़का आता है टप्पू. मैंने बोला यस. बोला देखो कितना फेमस, उसको सब लोग जानते हैं. तो हाँ. तो बोला वो फेमस है, वैसे तुम भी हो सकते हो. मैंने बोला कैसे? बोला जब तुम भी बोलोगे तो तुम्हारा भी तो फोटो आएगा ना टीवी में, सब लोग पहचान लेंगे तुम्हें. मैंने बोला हाँ ये तो सही है, मैं भी फेमस बनूंगा. सो दैट लीड्स मी टू स्पीक अप. मतलब वो एक मेरा लाइफ का एक ऐसा पॉइंट था कि मैंने बोला हाँ ठीक है, डर को छोड़ो, बट ये अच्छा अपॉर्चुनिटी, मैं तो टीवी में आ जाऊंगा. एंड देन फ्रॉम दैट टाइम टू दैट, रात का 9 बजे का मेरा टाइम था इंटरव्यू का. मैंने पापा का मोबाइल में 1000-1500 जितने नंबर थे सबको फोन लगा दिया कि मेरा इंटरव्यू आने वाला है, मेरा इंटरव्यू आने वाला है. एंड एवरीबडी वाज लाइक वेरी हैप्पी एट दैट कि इतना यंग एज में आ रहा है, पता नहीं क्या किया होगा इसने, ऐसा तो क्या कर दिया. और उतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा उसको समझाऊं, जिसको भी फोन किया उसको. तो रात को 10 से लेके 11-12 बजे तक इनकमिंग कॉल्स चलती रहे कि ओके कांग्रेचुलेशंस दिस दैट. And now I come to the story when the funding gets into the question mark कि चलो भाई ये तो एजुकेशन था और ये अब उसका सक्सेस था. What was in between कि कहाँ से फंड्स आया, कहाँ से ये चीज शुरू हुई. एंड आज किसी को भी अगर बोलते हैं ना कि आप इनोवेशन करिए, यू स्टार्टअप योर एक अपना कंपनी शुरू करो या स्टार्टअप करिए, बी एंटरप्रेन्योर, एक ही क्वेश्चन आएगा, अरे सर फंड नहीं मिलता है अभी, तो फंड का कैसे होगा. सो नाउ इट इज द राइट टाइम कि जो एक जर्नी उसके बीच में मैं बताऊंगा कि when I completed my 8th standard, I was in the 8th standard that time. I went to my grandfather. पहले तो पापा के पास गया कि पापा मेरे को फंड्स का रिक्वायरमेंट है, आई नीड 8,000 रुपी. एंड पापा सेड कि आई विल नॉट गिव यू 8,000 रुपी. व्हाई? तो मैंने बोला पापा सिर्फ 8,000 तो इसमें भी क्या पूछना है. आई यूज द वर्ड सिर्फ कि पापा सिर्फ 8,000 तो है. He had simply said कि भाई अब सिर्फ बोला है ना तो इसको भुगतो. मैंने बोला क्या किया मैंने ऐसा? बोला यू शुड वैल्यू द मनी. तो बोला कि नहीं, इट इज नथिंग टू फन अबाउट, यू नीड टू लर्न ईच एंड
एवरी मतलब आपको एक एक पेनी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो मैंने बोला पापा सिर्फ 8,000 तो है, आप तो ड्राइवर को दे दिया, उसको दे दिया, इसको दे दिया, मेरे को देने में क्या दिक्कत है, मैं तो आपका लड़का ही हूँ। तो बोला नहीं, मैं नहीं दूंगा, यू गो एंड अर्न ऑन योर ओन। मैंने बोला ठीक है पापा, मैं जाके कमा के आऊंगा। आई वेंट टू द किराना शॉप, आई वेंट टू फार्मा शॉप। व्हेन आई वेंट टू किराना शॉप आई आस्क्ड देम, सर मेरे को जॉब मिलेगा क्या? तो वो बोला कि सर ऑल राइट, जॉब तो मिल जाएगा, बट एज यू आर कंसर्न, आपका एज इतना कम है, हम जॉब दे नहीं सकते लीगली। और दूसरा कि आपको लीटर और किलो में पता नहीं, आप राशन कैसे लोगों को दोगे? अगर कुछ कम ज्यादा दिया तो हमें दिक्कत है, नहीं तो कस्टमर को दिक्कत है, इट्स नॉट गुड। देन मैंने बोला ठीक है यार, मना बोलो, जॉब नहीं देना है ना, मना बोलो, मैं अगले दुकान में जाऊंगा। मैं बाद में गया फार्मा, मैंने बोला यार मैं आर्ट एंड क्राफ्ट में तो अच्छा था, तो करना क्या, वो टेबलेट्स होता है उसको से कट कट करके ही तो देना है, 3-4 पीस तो मैं कट करके दे दूंगा, नथिंग टू डू विद दैट। बोला ऐसा नहीं होता है भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है 3 टाइम अ डे, 2 टाइम अ डे, अगर आपने 2 की जगह 3 कर दिया, वो आदमी चला जाएगा, इट इज वेरी रिस्की। तो मैंने बोला ठीक है, चेंज। देन आई वेंट टू अपना चाय का दुकान, मतलब काफी सारा सोचने के बाद मैंने बोला कि ये छोटा लड़का कहाँ पे काम कर सकता है। तो चाय का बंदा था कि जो चाय वाला, छोटे लड़के होते हैं वो चाय पिलाने के लिए दुकान दुकान आते रहते हैं। तो मैं उधर गया, मैंने बोला नौकरी मिलेगा। अब वो मेरा कपड़ा देख रहा है, मेरा फेस देख रहा है, जानता भी किसका लड़का है, पर वो बोला कि यार तुम्हें क्या जरूरत है जॉब का, और तुम छोड़ो, तुम्हारा पापा आके मेरी खेयर कर देंगे, सही नहीं है, मतलब योर पापा विल कम एंड स्कोल्ड मी कि तुम्हारा इतना ऐसे तो क्या, मेरे लड़के को नौकरी पे रख लिया। मैंने बोला देखो, नथिंग टू डू विथ हिम, मैं अपना जॉब के लिए आया हूँ, इफ आई एम एलिजिबल आई, मेरे को जॉब चाहिए, नहीं तो छोड़ो, मेरे को पैसा चाहिए। तो बोला कितना चाहिए? मैंने बोला मेरे को 8,000 चाहिए। तो बोला यार देखो, मैं तुम्हें 8,000 तो नहीं दूंगा, पर महीने का 4,000 तुम्हारा सैलरी हो जाएगा। यू नीड टू वर्क मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 9, गो एंड सर्व टी टू ईच एंड एवरीवन, एंड देन यू विल अर्न दिस मनी। तो मैंने भी बोला सही है, नौकरी तो मिल गया ना, मैंने बोला 2 महीने में कमा लेंगे, किसी का एहसान नहीं रखना है। घर पे गया, घर पे जाके पापा को बोला, पापा मेरा जॉब लग गया, मेरे को अब आपका पैसा नहीं चाहिए। तो पापा बोला गुड, काफी बढ़िया, कहाँ पे लगा? मैं चाय का दुकान में नौकरी लग गया। तो ही सेड कि ठीक है, अच्छा है, कितना कमा लोगे? तो मैंने बोला यार 4,000 तो महीने का मिलेगा। तो ही सेड ओके दैट्स गुड। अब बोला, पापा ने कहा बिजनेस स्टॉक कर लेते हैं, फादर एंड सन वाला। मैंने बोला ओके, मैंने बोला पता ही था कि ये तो बनिए का घर है, तो इट विल बी हैपन। हाँ। तो पापा बोला कि दैट यू आर स्टडिंग एट अ स्कूल जिसका महीने का फीस 25,000 रुपए है, मतलब इधर इधर करके महीने का आपका जो ट्रांसपोर्ट एंड स्कूल दोनों मिला के 25,000 रुपीज मंथली आपका फीस है सिर्फ। बुक्स का तो खर्चा अलग पकड़ा है। अभी आपका 2 महीने का 50,000 तो माइनस में है, एंड योर 8,000। तो पापा ने बोला नथिंग टू डू विथ योर 8,000, वो तो तुम्हारा अपना मर्जी है, लेट मी हेल्प टू मेक द बैलेंस शीट इक्वल। बोला मेरे को महीने का 25 दे दो, बाद में तुम्हें 1 लाख कमाना है तो कमाओ, नहीं कमाना है मत कमाओ, नथिंग टू डू विथ मी, जाओ। तो बोला कब मिलेगा मेरे को 25, बिकॉज मैंने तो प्रीपेड है, मैंने तो पहले ही आपका फीस पे कर दिया था, अब अगर अगला 2 महीने नहीं जाओगे तो नुकसान तो है ही वो। मैंने बोला अब मेरा तो पसीना निकल गया, मैंने बोला यार 4,000 में तो 9 से 9 चाय पिलाना है, अब रात के 9 से 9 भी सुबह चाय पिला दूंगा किसी को तो और 4,000 मिल जाएगा, तो इक्वेशन सेट नहीं हुआ मेरा। तो देन आफ्टर आई वाज इन थॉट कि यार ये काम नहीं, ना अब ये मेरे को चाय पिलाने देंगे, ना तो मेरा यहाँ पे धंधा सेट हो रहा है, मेरे को तो 8,000 चाहिए। By that moment of time, I had already used my pocket money worth 47-48,000 rupee to develop that product. Because जो मेरे challenges थे, और मैं एक instructables.com करके एक website है, that website is for the DIY projects and certain things. There is a community जहाँ पे आपको काफी सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, डेवलपर्स से, कि यार ये चैलेंज है, तो इट इज अ क्रॉस बाउंड्री थिंग, मतलब वर्ल्ड में कोई बंदा कहीं पे भी बैठा है वो उधर से आपको कनेक्ट कर सकता है। सो आई हैड, मैंने सोचा कि ठीक है लेट्स डू इट। तो हाउ आई यूज्ड टू मैनेज द शेड्यूल, लाइक इन द डे टाइम आई एम एट पब्लिक, स्कूल गया, ट्यूशन गया, काम किया, सब कुछ कंप्लीट किया, बट नाइट एट 11 आई गेट इनटू माय रूम, स्टार्ट माय पीसी लैपटॉप, ओपन करके सर्फ किया, ये करना है, कैसे करना है, मोटर चाहिए, कहाँ मिलेगा, मोटर आ गया, बैटरी देने पे तो घूमेगा पूरा स्पीड पे, हाउ टू मेक दैट कंट्रोल कि उसको कैसे। देन आई एड कंट्रोलर, देन आई एड एक्सीलरेटर, कि एक्सीलरेटर चाहिए, फिर पता चला कि तो चोरी हो जाएगा, देन लॉक चाहिए उसके लिए, फिर बोला रात को कैसे चलेगा, बिकॉज इट इज ऑटोमोबाइल, आदमी तो रात को भी चलाएगा उसका साइकिल, तो एक लाइट चाहिए उसमें,
फिर रास्ते में बैटरी खत्म हो गया तो उसके लिए बैटरी इंडिकेटर चाहिए, कितना बैटरी है वो भी बताना चाहिए. इट्स हाउ द क्वेश्चन कम एंड स्टार्टेड वन ऑन वन डेवलपमेंट. एक टाइम आया जब मैंने देखा कि मेरा पॉकेट मनी शॉर्ट चल रहा है. आई नीड टू ऑर्डर अ पीसीबी. 1200 रुपए का था प्रोटोटाइप, बट मेरे को उसका कॉस्ट 8,000 रुपए आ रहा था, इंक्लूडिंग शिपिंग एंड लॉजिस, जो ये कस्टम्स वगैरह मिला करके. बट एट दैट टाइम माई एज वॉज नियर अबाउट 13, मतलब 12 से तो शुरू किया ही था, बट 13-14 का बीच वाला एज था. एंड आई वॉज कंफ्यूज कि भाई ये सब टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रहा है. बट गूगल इज अ गुड थिंग, यू कैन डू एनीथिंग फ्रॉम दैट. आप गूगल पे लिखिए कि व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी, यू विल गेट अ वेरी सिंपल डेफिनेशन देयर. व्हाट इज द डेमरेज, यू विल गेट अ वेरी. बट लोग उसको सर्च नहीं करते. इवन सेम थिंग हमारे टीचर्स जो हैं, टीचर आर गूगल फॉर अस. टीचर ने अपना 25 साल 20 साल निकाला, बाद में आपको पढ़ाने के लिए उस स्कूल में आ रहा है. एटलीस्ट ही इज अ ग्रेजुएट पर्सन. इफ यू आस्क हिम द क्वेश्चन ही विल एबल टू एड्रेस द query of 12 or 13 or 14-year-old boy. But people are not much into that curiosity. क्या पूछ लिया सर ने डाटा तो it is the thing which usually happen. But mainly what I say कि अगर आप जब तक वो क्यूरोसिटी का एक जो क्योर नहीं होगा तब तक हमारा देश का या हमारा कोई भी यूथ है ऑफ द इंडिया और एनी कंट्री, बट देट क्वेरी सॉल्व नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसका थॉट प्रोसेस भी नहीं बढ़ पाएगा. सो इट इज हाउ दैट. मैंने वो सर का किस्सा बताया कि सर ने मुझे मोटर के बारे में भी ज्ञान दिया. ही कुड हैव इजीली इग्नोर्ड. राज मैं तो इंग्लिश का टीचर हूँ, बात खत्म. नेक्स्ट वो ये भी बोल सकता था तुम अपना पढ़ाई करो, ये सब में दूर रहो. बट देन आफ्टर आई हैड आस्क्ड कि सर ये पापा को मैंने बोला कि ये फंड्स चाहिए. देन नेक्स्ट स्टेप वाज माय ग्रैंडफादर. मैंने बोला क्योंकि एज सोशल स्टडीज में सिविक्स आता है, उसमें पढ़ाया जाता था कि हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर प्रेसिडेंट होता है. तो मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट है मेरे लिए पापा, उधर कुछ नहीं हुआ. देन नॉक नॉक टू द प्रेसिडेंट, दैट इज माय ग्रैंडफादर. कि मैं दादा का शॉप पे गया, दादा आई नीड दिस हेल्प. दादा ने बोला तुम्हें क्या करना है यार, 8,000 छोटा अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 8,000 से तुम क्या करोगे. मैंने बोला दादा मेरा प्रोजेक्ट है ये वो. तो दादा ने बोला कि आई विल नॉट एबल टू हेल्प यू विद दैट. तो मैंने फिर उनको बोला कि दादा पूरा गांव को पैसा देते हो, मेरे को भी दे दो, लाइक ही इज इनटू फाइनेंस. तो मैंने बोला फाइनेंस मुझे भी कर लो, मैं भी ब्याज दे दूंगा. देन ही टोल्ड मी कि राज यू आर अ सन ऑफ अ बनिया, आप एक बनिए का लड़का हो. यू आर नॉट बोर्न टू गिव द इंटरेस्ट, यू आर बोर्न टू कलेक्ट द इंटरेस्ट. बनिया ब्याज कभी नहीं देता है, आपका तो काम लेना है. मैंने बोला ओके दादा ठीक है, बट अभी ये तो बताओ ना, मेरा पोजीशन यही है कि आई नीड दैट फंड एनी हाउ, मैं क्या. तो दादा ने बोला कि, मैंने बोला दादा मेरे को आप दे दो, मैं चलो कम ब्याज ले लेना, या मत लो ब्याज, ये तो बहुत बढ़िया है. दादा ने बोला नहीं भाई ये तो मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मैं भी तो बनिया हूँ, तो यू नीड टू पे द इंटरेस्ट. मैंने बोला ठीक है भाई. मैंने बोला कुछ भी करो यार, तुम पैसा दो, छोड़ो, चिक चिक नहीं चाहिए, प्लीज 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 करके. दादा ने बोला कि ओके गिव मी कोलेट्रल. मैंने बोला दादा ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है. दादा ने बोला कि भाई समथिंग विच यू गिव टू अगेंस्ट दैट बोरोड मनी टू गिव द अश्योरेंस ऑफ रिटर्निंग इट फ्रॉम द लेंडर. मैंने बोला सही बात है ये तो, पर मैंने बोला दादा मेरा क्या गारंटी लेना है, आई एम योर ग्रैंडसन, मैं तो कहाँ जाऊंगा. बोला नहीं नहीं भाई तुम दुकान पे आए हो, इट इज ऑफिस शॉप है ये, यहाँ पे तुम्हें कोलेट्रल देना, यू नीड टू गिव मी असेट्स वर्थ ₹10,000 ऑन विच आई विल फाइनेंस यू ₹8,000. तो मैंने फिर दिमाग लगा कि मेरा असेट्स क्या क्या हो सकता है. तो मैंने सोचा मेरा बुक्स तो ही, फिर ज्वेलरी है. तो मैं घर पे गया, बुक्स उठा के ले आया, सारा कुछ मेरा लास्ट ईयर का जो बुक्स था. दादा ने बोला प्रूफ ऑफ ओनरशिप कहाँ है इसका. मैं घर पे गया, मम्मी से बिल मांगा, बिल लेके आया. अब बिल पे लिखा होता शैलेश भाई बिपिन चंद्र मेहता. मैंने, दादा ने बोला यार ये आदमी तो तुम नहीं हो यार, ये नाम जिसका है वो आदमी चाहिए मेरे को. ये तो पापा है. तो बोला दिस बिलोंग्स टू हिम, ही इज द ओनर, आपने तो उसको यूज किया, यू आर अ यूजर, ओनर तो वही है, पैसा तो उन्होंने दिया. आई वाज अगेन इनटू दैट कि साला ये फंस गया. फिर मैंने बोला दादा ये मेरा कान का ईयरिंग है, प्लीज टेक दिस बाली. बोला इसका भी प्रूफ तो चाहिए होगा ओनरशिप का, लाओ. दादा, मैंने बोला नहीं है वो तो पापा का बिलोंग करता है. अगेन कम्स द क्वेश्चन मार्क कि भाई ये तो फंस गया. देन आफ्टर दादा को मैंने बोला दादा ये अगर आप नहीं समझोगे तो वर्ल्ड में मेरा प्रॉब्लम कोई नहीं समझ सकता है, और मैं फंस चुका हूँ, मेरे को चाहिए ये. तो दादा ने बोला करना क्या यार तुम्हें.
मैंने बोला ये प्रोजेक्ट में लगाना है। दादा ने बोला चलो एक कंडीशन हम करेंगे। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला दादा इन 3 months आई विल रिटर्न यू द मनी इन द कमिंग टाइम, बट आई नीड टू सेंड दिस मनी टू कोरिया। दादा ने बोला कि यार ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बोला यहाँ तुम बैठे हो गुजरात में, तुम्हें कोरिया पैसा भेजना है और इसका तो मुझे भी कोई अनुभव नहीं है, ये वो। देन दादा सेड कि दैट आई विल मॉनिटर योर एक्सपेंस वेर एवर यू आर यूजिंग इट, मैं उसको मॉनिटर करूंगा, आई विल नॉट गिव यू 8,000 रुपी इन हैंड। मैंने बोला दादा इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि आपका जितना सीनियर आदमी मेरा फंड्स पे कंट्रोल करेगा, तो एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड एंड अंडर कंट्रोल। मैं कहीं एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा, मेरा तो बचत है उसमें। देन आफ्टर दादाजी सेड कि ओके लेट्स गो टू द बैंक, तुम्हें तो अभी कोरिया भेजना है। बैंक में गए। बैंक में जाके मैनेजर बोला कि राज जी आपको हम लोग फंड्स देंगे, सॉरी हम रेमिटेंस करेंगे, बट आई नीड योर करंट अकाउंट। मैंने बोला सर ये कौन सा अकाउंट होता है। ही हैड एड्रेस्ड माय क्वेरी कि राज जी ये करंट अकाउंट है, बिजनेस के लिए यूज होता है, देयर इज अ सेविंग अकाउंट जो आपका है बट ये करंट अकाउंट है। फिर बोला कि ये फेमा एंड फेरा का गाइडलाइंस होता है। मतलब मैंने मैनेजर को क्या बोला कि सर ये सब नहीं है, छोड़ो ना, तुम्हें तो ये 8,000 दिया है, तुम 8,000 पहुंचा दो कोरिया में। मतलब गांव का आदमी सीधी वन ऑन वन चीज के सर ये सब पेपर वापर छोड़ो, वन ऑन वन सीधा डिस्कशन करेंगे, मैंने तो पैसा दिया है, मेरे को ये पैसा चाहिए वहां पे। तो ही सेड कि राज ऐसा नहीं होता है, वी नीड टू फॉलो द आरबीआई गाइडलाइंस, फेमा एंड फेरा का पॉलिसीज होता है। आई सेड ओके ठीक है। एंड देन आफ्टर अब मैं एक मंदिर का एक कहावत है, मंदिर में बोला जाता है पंडित होता है ना, वो बताता है तुम्हें शनि है, मंगल है, ये है वो है। फिर वो पंडित ही बताएगा कि कैसे निकलेगा, क्योंकि उसको पता भी है निकालने का वजह क्या। तो आई आस्क्ड दैट बैंक मैनेजर कि सर ये तो आपने बता दिया प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन आप ही एड्रेस कर लो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। बोला देखो इसका सॉल्यूशन ये है कि देयर इज अ कंपनी जो फॉरेन रेमिटेंस करता है, पेरेंट्स को बच्चों को विदेश में पैसा भेजना होता है या ये सब होता है, दैट कंपनी वर्क विद दैट। तो वो है ना किसी और का डॉक्यूमेंट लेके आपका पैसा वहां पहुंचा देगा, बट आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा और कमीशन अच्छा चार्ज करेगा वो। देन आई कॉल टू दैट कोरिया पर्सन, स्टार्टेड नेगोशिएशंस कि यार जो 8,000 रुपये है यार मेरा, उसमें 500 रुपये तो कमीशन लग जाएगा, तो यू विल गेटिंग 7,500 रुपी, एंड उसके पास मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा हुआ है, आई कैन नॉट हेल्प यू विद दैट। ही सेड एनी हाउ, नेगोशिएशंस किया, सीखा समझा, एंड ही सेड डन, ओके 7,500 में डील डन करेंगे। Then after I went to a shop that do this such kind of remittances and gave the money. And दादा ने बोला कि अरे पैसा भेजा चोरी हो गया तो, मतलब फ्रॉड हो गया तो। मैं बोला दादा ऐसा नहीं, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है ये वो। दादा ने बोला यार क्या है, मतलब इट्स नॉट गुड टू ट्रस्ट लाइक ब्लाइंडली टू एनीवन। बट मैंने बोला ठीक है दादा, अभी रिस्क तो लेंगे ना, बिजनेस करना है, रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ अच्छा काम करना है तो। तब तक दादा को ये पता नहीं था, दादाजी को, कि हम लोग ऐसा साइकिल बना रहे हैं क्या है। And then one fine day, there was a heavy rain, and uh, in between, I asked पापा कि पापा एक पार्सल आया है, लेने जाना है हमें। एंड पापा सेड क्या है, मैंने बोला फ्रेंड का है। तो बोला तुम्हें अभी क्यों जाना है, बोला 4 व्हीलर इज नॉट अवेलेबल, इट इज इनटू द सर्विस। 2 व्हीलर लेके इतना बारिश में जाने का सेंस नहीं बनता है, पानी भरा हुआ है रास्ते में काफी सारा, इट्स नॉट गुड। नहीं पापा वो डेमरेज लगेगा। तो पापा ने बोला यार तुम्हें डेमरेज कहाँ से पता चल गया, और तुम्हें क्या मतलब, वो तो तुम्हारा फ्रेंड का है। मैंने बोला नहीं पापा ऐसा नहीं होता है, अगर हम लोग कोई चीज को लेट लेने जाते हैं और टाइमलाइन में अगर उठाते नहीं है वहां से, तो वी नीड टू पे डेमरेज। पापा ने बोला ओके, बट तुम्हें क्यों चिंता है, फ्रेंड को बोलो कि भाई लगेगा तो लगेगा, हम नहीं जा सकते। फिर मैंने थोड़ा धीरा आवाज से बोला कि पापा ये अपना पार्सल है। एंड ही वाज स्कोल्डिंग मी लाइक एनीथिंग, है तुम पैसा कहाँ से लेके आ गए, ये वही है तुम 8,000 मांग रहे थे, चला मेरे को समझ नहीं आया कि तुम्हारा स्टडीज भी चल रहा है ये वो। एंड देन मैंने ज्यादा चिल्लाया, मतलब मेरे को है ना पीटने वाले थे वो, तो मैंने फिर धीरे से बोल दिया पापा दादा ने दिया। अब देन ही हैव नो राइट एंड अथॉरिटीज टू स्पीक अप, बिकॉज ये तो अब आगे प्रेसिडेंट ऑफ होम बोल दिया कि फाइनल तो फाइनल। पापा ने बोला तुम बड़ा शाना निकला, तुम मेरे से नहीं मिला, दादा से ले लिया। मैंने कहा पापा अब देखो ये तो काम करना पड़ता है सिविक से, अगर हाई कोर्ट में काम नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, तो आदमी जाएगा प्रेसिडेंट के पास। तो पापा ने बोला ठीक है चलो। बोला तुम करोगे क्या इसका, मैंने पापा हम इसका साइकिल बनाएंगे। बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अपना पढ़ाई देखो, अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो, पढ़ लिख लो, इतना अच्छा बिजनेस है अपना, उसको मैनेज करो, ये सब में नहीं पढ़ने का सही नहीं है। बोला पेड़ पे थोड़ी होता है ये वो, इतना चिल्ला इतना चिल्ला। देन घर पे आ गया मैं और बोला आप देखेंगे आज तुम क्या करते हो।
तो दैट टाइम मैं अपना बैकयार्ड में लेके गया. सो लाइक दैट टाइम वी रिसेंटली शिफ्टेड टू अहमदाबाद. सो आई हैव होम, इट इज लाइक बंगलो. तो उतना है ना विजिबिलिटी नहीं रहता है कि लाइक उनका भी डेली वो है, सुबह आए गए आए, तो उतना टाइम नहीं रहता है कि पीछे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है देखने में. एंड रूम है तो मेरा रूम में क्या हो रहा है वो भी उनको पता, मीन्स उतना बिजी शेड्यूल रहता है तो कोई उतना टाइम नहीं दे पाता है. तो देखा, अरे तुम ये सब कब खोल के बैठे हो? तो पापा बोला पैसा कहाँ से लेके आए इतना सारा? मैंने बोला पापा वो बचपन से अभी तक का जितना इकट्ठा हुआ था सब यूज कर लिया. मतलब वो रिलेटिव्स ने आया, किसी ने कुछ दिया इधर उधर, तो वो दैट अमाउंट वाज नियर अबाउट 47-48,000 जो मैं यूज कर चुका था. एंड देन पापा ने बोला तुम्हें वैल्यू ही नहीं है पैसे का कुछ भी, ये वो. पापा मेरे को ट्राई करने दो. And it was the time when I had used that PCB and made a cycle complete. Even that cycle was meant for my sister. वो साइकिल जो घर पे लाया गया था वो 2 साल पहले आई थी. मतलब मेन तो एजेंडा वो था कि उसके लिए सीखने के लिए लाए थे, बट उसने अब उसमें कुछ किया नहीं था और वो वैसे ही वैकेट पड़ी हुई थी. तो मैंने बोला इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना साइकिल तो अच्छा है उसको नहीं छेड़ेंगे, ये पड़ी हुई है इसको छेड़ते. तो उसको मैंने ये सब खोल खाल के रखा हुआ था. एंड पापा ने बोला कि ये तुम्हारा मोटर जो है, लाइक यू हैव दैट 3 kgs ऑफ मोटर, इट कैनॉट टेक लोड ऑफ 70 kg पर्सन. मैं बोला पापा ये मेरा गणित बोलता है ये लेगा. तो पापा ने बोला लेट्स सी. तो पापा वो भरी बारिश में मेरी साइकिल ले करके गए. दैट साइकिल स्टार्टेड लाइक एनीथिंग. दैट वाज द सक्सेस व्हेन आई गॉट इट. एंड दैट साइकिल कंप्लीटली एक चक्कर, मैंने बोला आया नहीं 15 मिनट हो गया, ये पक्का बंद हो गया होगा, जल गया होगा. एंड पापा भरी बारिश में वो साइकिल लेके रिटर्न आए. एंड आई सेड हाउ वाज दैट? बोला सुपर. बोला कभी नहीं सोचा था कि मेरा लड़का ये बना के देगा. एंड ही सेड कि ओके डूइंग गुड. फिर मैंने दादा को कंप्लेन किया, उसी दादा को भी बताया, दादाजी देखो ये बना है. फिर दादाजी को बोला दादाजी देखो मैं इसके लिए सब कर रहा था. दादाजी ने बोला ओके गुड, यू डिड वेरी वेल. फिर मैंने बोला दादाजी एक कंप्लेन है. बोला क्या? यार आपका लड़का सही आदमी नहीं है. बोला यू फुल, तुम पता है तुम किसको बोल रहे हो? तुम्हारा पापा है. आई सेड दादाजी, दादाजी देखो मैंने 8,000 मांगा, मेरे को नहीं दिया. तो दादाजी ने बोला क्यों, तुम्हें गलत लगा? मैंने बोला वो ड्राइवर है, ड्राइवर ने बोला सेठ मेरे को 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए. पापा ने दे दिया उसको. बोला बीवी बीमार है. मैं घर पे गया, घर पे उसकी बीवी सही थी, पैसा भी दिया. दूसरे दिन मैंने पापा को बताया, पापा उसकी बीवी बीमार नहीं है. पापा ने बोला ठीक है लेट इट गो, उसने मांगा हमने दिया. So yeah, at that time I went to that ABP News interview. उन्होंने लिया. एंड देन लोगों का डिमांड आना शुरू हो गया. तब मुझे बिजनेस का डेफिनेशन पता चला कि व्हाट इज द बिजनेस. मतलब कमेंट्स में लोगों ने डाला कि राज आई नीड 1 किट फॉर माई सेल्फ, मुझे भी ये करके दे दो. फिर कुछ लोगों ने अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बताए. मैंने तो एक फन अपने काम के लिए बनाया था. बट दैट टाइम पब्लिक हैड स्टार्टेड कि राज जी मैं दूध का विक्रेता हूँ, आई डिस्ट्रीब्यूट मिल्क ईच एंड एवरी होम, घर घर जाके. तो मेरे लिए पेडल लगाना इतना इजी नहीं रहता, हेल्प मी विद दैट. एक ने बताया मैं पेपर वेंडर हूँ, मैं लोगों का घर पे पेपर फेंकने के लिए जाता हूँ, तो मेरे लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है मैं एक स्कूटर खरीदूं. तो मुझे तो साइकिल है बट इसको इलेक्ट्रिक बनाना है और आपके जैसा बना के दो. ऐसा ही काफी सारे लोगों ने कमेंट्स किया. आई गॉट मोर देन 800 प्लस कमेंट्स बाय द इवनिंग. मतलब 4 से 5 घंटे में इतना कमेंट्स था. सो आई कंसिडर्ड देम एज अ बिजनेस लीड्स. सबने नंबर भी डाल दिया था, मैंने फोन लगाया, बात किया और एक एक लोगों से एक एक चीज समझी. देन आफ्टर एक एक चीज कंप्लीट करने के बाद एक टाइम था कि जब डेली का न्यूज इंटरव्यूज होना शुरू हो गया. मतलब चीजें फैली, पत्रकार लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट किया. हर एक लोगों को ये था कि स्टोरी मेरे पास आना चाहिए, कोई अलग फैक्टर से हम कवरेज करेंगे और हमारा न्यूज में ये चीज एक्सक्लूसिवली शोकेस हो. दैट टाइम इट वाज अ बूम. एंड प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ने काफी अच्छा कवरेज दिया अक्रॉस द इंडिया. एंड देन आफ्टर उसको इम्प्लीमेंट किया. मतलब बोलते ना पब्लिक का फीडबैक आपको लेना चाहिए. एंड आई अप्लाइड माय माइंड कि कुछ लोग थे जिनको दिव्यांग था. बोला कि यार जिसके लिए पैर है वो तो आपका यूज ही कर ही रहा है. हाउ अबाउट द वन हु नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू पेडल, जिनका पैर ही नहीं है उनके लिए क्या है. तो देन आई थॉट कि इसके लिए भी कुछ डेवलप किया जाए. देन पेडल रिक्शाज जो होते हैं, किसी ने बोला कि सर इसको थोड़ा और हैवी बना लो. तो हम लोग जो ये नारियल पानी होता है या जो ये पेपर पस्ती वाला जो लोग होता है,
जो पेपर का जो ये स्क्रैप रहता है उसको लेके जाता है। तो सर इसका इलेक्ट्रिक करिए। पेडल रिक्शा जो दिल्ली में चलते हैं, जो पेडल रिक्शा होते हैं, 2 लोग बैठते हैं, एक आदमी पेडल लगाता है। तो इन सब के लिए भी सर कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। वन ऑन वन आई कीप ऑन इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। हमने पेडल रिक्शा के लिए कन्वर्जन किट बनाया with cargo as well as passenger both, which can take load up to 500 kilograms. That kit cost is 8,700 rupees. मतलब एक कहाँ 1.5-2 लाख रुपए का रिक्शा आता है, कहाँ एक 15,000 का पेडल रिक्शा है, उसमें आपने किट विट लगाया, टोटल टोटल बैटरी बैटरी मिला करके भी वो 50,000 के अंदर कंप्लीट हो जाता है, विच कैन कम्पीट विद दैट 1.5 या 2 लाख रुपए का रिक्शा। कि एक 2 लाख का रिक्शा लो, उसका मेंटेनेंस करो। बेटर है कि यही मेरा पेडल रिक्शा है, वो हाइब्रिड हो गया, कल उसका बैटरी खत्म है तो पेडल से भी आदमी जाके आ सकता है कहीं पे भी। सो इंट्रोड्यूस दैट एज वेल एज हैंडीकैप लोगों के लिए भी हमने ये शुरू किया। तो इट इज हाउ द पब्लिक गोट मोटिवेटेड कि यार ये सही है। मीन्स पब्लिक का मोटिवेशन मिला मुझे भी कि राज यू आर डूइंग वेरी वेल, यू कीप ऑन डूइंग दिस स्टफ। काफ़ी एनजीओज हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। काफ़ी सारी पब्लिक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज उस टाइम मिली, अभी भी मिल रही है। तो उस टाइम ये सब मेरा नर्चरिंग पीरियड था, अभी भी मेरा नर्चरिंग पीरियड चल रहा है। एंड दैट टाइम आई गेट मच ऑफ द लर्निंग कि पब्लिक का समस्या क्या है, और अगर आपने उसको समझ के एम्पैथाइज मतलब उसको एड्रेस किया तो यू आर डूइंग द वेरी वेल, मतलब आपका बेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होगा with taking the public feedback. Without feedback you cannot develop your products. So then after YouTubers का help लिया, मतलब YouTuber कुछ थे ना, उन्होंने मेरा पर्सनल इंटरव्यूज लिया और कुछ ने उसको पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू अनबॉक्सिंग का बनाया। देन मैंने पापा को पूछा कि पापा हमारे पास तो इतना डिमांड्स आ रहा है, तो हाउ वी विल मेक इट पॉसिबल टू प्रोवाइड देम, बट ये डिमांड तो अश्योर है। देन पापा सेड ओके, आई विल बी द इन्वेस्टर इन योर बिजनेस, मैं इन्वेस्ट करूंगा। बोला कितना चाहिए तुम्हें? मैंने प्लान किया, मैंने बोला कि यार देखो ये प्रोडक्ट का कॉस्ट 7,500 रुपीज़ हमें रखना है। अभी तो मेरा ही कॉस्ट 8,000 रुपये आ रहा है, बट मैंने सबको पूछा, पब्लिक रिव्यू लिया कि आपको कितना तक अफोर्ड रहेगा, ये वो। तो सबने बताया कि सर ये 8,000 7-8 हज़ार में चलेगा, ये वो। तो मैंने बोला अब इस कॉस्ट में लाने के लिए मेरे को इस स्केल का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अगर कम स्केल में करूंगा तो मेरा भी कॉस्ट नहीं आएगा ना उसका ज्यादा होगा। तो दैट टाइम मैंने बोला ओके आई एक्सेप्ट दिस। पापा ने बोला आई नीड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मेरे को एक अच्छे से तुम लिख के दो क्या क्या लगेगा कैसे लगेगा। तो एनी हाउ दैट फंड वाज अराउंड 5 लाख रुपीज। कि मैंने बोला पापा 5 लाख रुपीज का रिक्वायरमेंट है, बट आई विल बी एबल टू रिटर्न यू इन द टाइम विद गुड मार्जिन्स, एंड पब्लिक का भी बेनिफिट होगा, हमें लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। पापा सेड ओके ठीक है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, उनके लिए 5 लाख उस टाइम कुछ भी नहीं था कि लाइक ठीक ही कर लेगा देख लेगा, हम इसका मजा लेते हैं, चलो 5 लाख दिया। और मुझे बोला था कि लाइक इफ यू आर लॉजिंग मनी, इफ यू आर लॉजिंग 1 लाख रुपी, I will withdraw another 2 lakh from the business. Like I'm giving you 5 lakh, you lost 1 lakh. Now you have 4 lakh rupees. I will withdraw 2 lakhs. If you are maintaining, I will increase 10%. अगर 5 lakhs लेके मटेरियल बेच के भी 5 lakhs अगर बचा है लास्ट में, I will increase 10%. If you are earning 1 lakh rupee, 5 lakh का 1 lakh किया, I will putting you 2 lakh rupees. अगर आपने 5 का 6 किया है, I will be giving you 2 more. Now it is on you how you are driving the business. मैंने बोला ये सही जुगाड़ है एकदम, मतलब फुल प्रेशर वाला कि अगर लॉस हुआ तो कटते जाएगा, एड हुआ तो बढ़ते जाएगा। टिल नाउ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आई गॉट इनटू नेगेटिव मार्किंग्स। एंड आई लर्न द थिंग्स, लॉजिस्टिक्स के बारे में समझा, प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस किया, लीगल चैलेंजेस काफी था उसको फेस किया। एंड these are the number of things, maybe takes like it's a journey of 9 years. अभी मुझे 9 years हो गया है, so it's very hard to summarize that in the short time. But then after न्यूज एंड देन यूट्यूबर्स ने वीडियो जो बनाया मेनली, अब यूट्यूब का अब एबीपी न्यूज है तो वी नो कि एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कौन करेगा जो हिंदी भाषी है, विदेश में रह रहा है, बट ही इज अ भारतीय। बट व्हेन इट्स कम टू यूट्यूब, यूट्यूब का कोई मजहब कोई सीमा नहीं है, यूट्यूब कहीं पे भी जाता है। सो पीपल फ्रॉम क्रॉस कंट्रीज क्रॉस कॉन्टिनेंट्स दे हैड आस्क्ड मी कि राज सर वी नीड दिस किड्स, एंड स्पेनिश में लिख के किसी ने दिया है, फ्रेंच में लिख के दिया है। देन आई गोट द नीड ऑफ दैट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, क्योंकि मुझे एक्सपोर्ट करना था। फॉरेन करेंसीज के बारे में पता चला, व्हाट आर द कन्वर्जन्स, हाउ द ट्रेजरी वर्क्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट,
क्या बिल ऑफ एंट्री होता है, बिल ऑफ लेडिंग, दीज आर द पॉलिसीज टू बी अंडरस्टैंड। CIF, कस्टम इंश्योरेंस, फ्रेट के साथ शिपिंग टर्म्स अलग अलग होते हैं, काफ़ी कुछ सीखा। And at age of 17 I exported to 11 countries, as I said, and then now I have clients in more than 19 countries as of now. And that time मैंने फिर पेट्रोल टू इलेक्ट्रिक बाइक का भी कन्वर्जन किट तैयार किया। इन द 2018 के आसपास का एरा था, व्हेन आई वाज इन द डिप्लोमा टाइम, एंड नियर अबाउट मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी उसी समय आया कि अगर किसी भी पेट्रोल बाइक को आप इलेक्ट्रिक बना सकते हो। मतलब पब्लिक ने क्वेरी किया कि राजी इसका हम क्या करें, हमारे पास तो ये जुगाड़ है, इसको कैसे चेंज किया जाए। ये बाइक पुराना हो गया 15 साल, अब तो माइलेज भी नहीं देता है, नया लेंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, विच वी कैनॉट अफोर्ड। Then I made that possible कि यही किट उसमें लगे। So we have 4 product range. One is to bicycle to electric, normal bicycle हो गया, tricycle हो गया, pedal rickshaws जो होते हैं, handicap का हो गया, and then petrol bike to electric bike. And then after June 2019 में पब्लिक ने हमने ग्रेटा का स्थापना किया, ग्रेटा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बिकॉज पब्लिक हैड सेड कि राज हमें अब कंप्लीट प्रोडक्ट चाहिए, वी डोंट वांट दिस सेटलमेंट की पेचिस वाला काम कि पुराना बाइक नया मोटर, ये नहीं करना है। वी नीड अ कंप्लीट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइड, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस ऑफरिंग्स ऑफ योर कंपनी। जो कस्टमर्स ने हमारा कन्वर्जन किट्स लिया था इन द 17 और 18 2016 में, वो आदमी आज भी जुड़ा हुआ है, एंड दे आर यूजिंग द ग्रेट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स कि वी आर बिकॉज उसने सेटिस्फाई वो लिया है, ही हैड टेस्टेड दैट सेटिस्फेक्शन कि डेली का जो 100 रुपए पेट्रोल का जा रहा था वो अटक चुका है अभी, तो वो समझ गया कि उसका बचत कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। And it is how the Greta started. I made my life's first international trip when I was 18 year old. मैंने जैसे ही 18 year complete हुआ, I made the trip to the city, the country of technology, it is China. कि I spent there 85 days and traveled 23,000 kilometers on road all alone. I was having no connection, कुछ लेना देना नहीं है वहाँ पे, किसी को जान पहचान नहीं है। I started from the scratch, and this trip is divided into the 3 phases. I been to Thailand. I stayed 45 days there in Thailand. उधर भी काफी कुछ explore किया. Then to Macau, to Hong Kong, and this everything get done in the 6 months before the COVID starts. So it is from June 19 to November 19. ये सारा countries को explore किया, समझा, technologies समझी, and imports किया. I started my production from the January 2020 of the Greta Electric Scooters. We got our approval in late 2019 from the ICAT, that is a lab for testing the vehicles. By after the testing we are allowed to sell the vehicle on the roads of India, कि हम लोग बाद में ही चला सकते हैं, अप्रूवल चाहिए होता है। So we get our vehicles homologated in the late 2019, and January से हमने प्रोडक्शन शुरू किया। But then we got a very big leg, that is COVID, because March से लॉकडाउन शुरू हो चुका था। But anyhow, we did our first international Greta deal in the October 2020. It is in the नेपाल में हमने एक शोरूम शुरू किया था, अभी 2 शोरूम्स है हमारे नेपाल में। And in the meanwhile, COVID was very badly affecting the business, because एक startup था, I was having the pressure that if I'm adding the money, I'll get the money. I'm letting down the money, I'll get money off from my business. So मैंने मैन पावर को भी उसी तरह से मैनेज किया, एंड दिस ऑल वे लर्निंग फेज। मैंने कभी मेरा लाइफ का पहला ऑफर लेटर मैंने जिसको दिया, दैट वाज आल्सो लर्निंग इटसेल्फ, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था तब ऑफर लेटर क्या होता है। इन द टुडेज एजुकेशन, व्हेन अ पर्सन कंप्लीट इट्स हायर सेकेंडरी स्कूलिंग, उसको नहीं पता ऑफर लेटर कैसे लिखा जाता है, बट हाँ उसको ये अच्छे से पता है लीव एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। मीन्स स्कूल के अंदर दे ऑलवेज मेक देम कि अच्छा पढ़ लोगे, अच्छा नौकरी मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगा, आप सेट हो जाओगे। दे नेवर मेक देम अवेयर अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, दे नेवर डेवलप द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन देम। सो इट इज ऑलवेज लाइक वो लोगों को हमेशा नौकरी के लिए ही प्रेरित किया जाता है। अगर उनको वो सिखाएंगे कि हाउ टू एक्सेप्ट अ लीव एप्लीकेशन, हाउ टू ड्राफ्ट एन अपॉइंटमेंट लेटर, व्हाट इज ऑफर लेटर, हाउ टू रिजाइन, वो कभी नहीं सिखाया। व्हाट इज सैलरी स्लिप, व्हाट आर द एचआर टर्मिनोलॉजीज, 12th स्टैंडर्ड तक एचआर की टर्मिनोलॉजी नहीं पता होती है लोगों को। एंड इट इज अ वेरी बैड ट्रूथ ऑफ द टुडेज एजुकेशन सिस्टम कि अगर मैं इवन किसी बीटेक वाले आदमी को भी बोलूंगा ना
कि मेरे को ये अपॉइंटमेंट लेटर ड्राफ्ट करके दे दो विद सो एंड सो पोजीशन एंड आई नीड दिस प्रोबेशन टर्म सो ऑन। उसको प्रोबेशन का मीनिंग नहीं पता है, उसको वोकेबलरी नहीं पता है, वो जो अपॉइंटमेंट लेटर में ड्राफ्टिंग होता है टर्मिनोलॉजीज का, what is a provident fund, what is ESIC, what is PA, PT, professional tax क्या होता है, क्यों लिया जाता है, they are not aware about these things. They do graduation, they be ready for the a robotic mechanism जहाँ पे वो एक रोबोट बन के एक सपोर्टिव कंपोनेंट बन के ज्वाइंट हो जाते हैं एक सिस्टम के अंदर. सो इट इज द लेग ऑफ अवर एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम की, जहाँ पे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप नहीं करते हैं. एंड देन लेटर ऑन the latest update is like we started a new factory in Faridabad. That is also challenge to me because मेरे लिए फरीदाबाद एक ओपन लैंड ग्रीन फील्ड था जहाँ पे मैंने शुरू करना था प्लांट को. एंड अहमदाबाद में भी जो मैंने प्लांट अपना सेटअप किया यहाँ पे, तो दैट टाइम माय एज वाज लाइक वेरी माइनर एंड I never consider my age because I have the thoughts to be more than my age. So always I think that if I can think, I can do it. If you are not able to think, you cannot do it. तो अगर सोचा है तो उसको करना है. एंड मेरा लाइफ में या मेरा ब्लड लाइन्स में भी किसी को अनुभव नहीं है फैक्ट्री सेट करने का. बट आई टुक 4 years to set my factory in Ahmedabad. Parallelly, in the 3 months, I selected the land, and from the finalizing to the land to the making a factory operational, I did it in the Faridabad. मेरा recent assignment कि जो मैंने ग्राउंड फील्ड जीरो, मैं फरीदाबाद गया हूँ मेरा बैग पैक करके, अब मुझे फैक्ट्री सेट करके ही आना है. एंड 93-94 डेज स्पेंड किया, मेरा फैक्ट्री वहां पे आज प्रोडक्शन दे रहा है. दैट फैक्ट्री स्टार्टेड द ऑपरेशंस एंड इट इज द लर्निंग. मतलब जो 4 साल मेरे को लग गया, वो 4 साल में जो सीखा वो 3 महीने में मैंने अप्लाई कैपेबल होना चाहता हूँ. एंड इट इज हाउ द गीगा फैक्ट्री एंड द अदर फैक्ट्रीज बिल्ड अप. टेस्ला का बोला जाता है हर एक अभी नया नया फैक्ट्रीज खुल रहे हैं. फोर्ड टोयोटा का एक जमाना बीत गया फैक्ट्री सेट करने में. टेस्ला तो अभी उगता ब्रांड है जो सामने गीगा फैक्ट्रीज तैयार कर रहा है, मींस मिलियंस ऑफ कार का प्रोडक्शन कैपेसिटी रख रहा है. तो इट इज नथिंग टू फन अबाउट, बट इट इज गुड टू लर्न फ्रॉम दिस. मैंने भी सोचा कि अगर वो बंदा ये चीज कर सकता है इस एज पे, एलन मस्क कैन डू दैट. मैं तो अभी नथिंग, माय एज इज नोवेयर अ बाउंड्री, आई कैन डू एनीथिंग. And with that spirit, I start my thought and I execute it very well. And yeah, it is how the journey till now it is. And we started the world highest altitude electric vehicle showroom. विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम, वो की ग्रेटा का है, in the Ladakh. So we made it possible to drive there. We have testing going on the European country, in the Lithuania. वहाँ पे टेस्टिंग चल रहा है व्हीकल का. And I never have a vision to make myself limited to Gujarat, Ahmedabad, India, or Asia. The sky is the limit. You can do whatever you want. You just have ability to think about it. And I have a very simple vision that I want to make the commute affordable to each and everyone, and the mode of commute affordable to each and everyone, with reducing the carbon footprints across the earth. So whoever are the citizens, whoever are the living beings on the earth, get the commute affordable and the mode of commute affordable. मतलब कि जरिया एक जगह से दूसरी जगह जाने का और वो जरिए का खर्च दोनों लोगों के लिए किफायती हो, अफोर्डेबल हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक व्हीकल बना दिया 50 लाख रुपए का, बट उसका पर किलोमीटर का कॉस्ट 10 पैसा है, सो इट इज नॉट अफोर्डेबल. बट इफ आई एम मेकिंग अ स्कूटर 10,000 रुपी, बट पर किलोमीटर 5 रुपए का खर्च है, वो भी अफोर्डेबल नहीं है. वी वांट टू हैव अ प्रोडक्ट विच इज अफोर्डेबल टू एवरीवन एंड द फ्यूल विच इज अफोर्डेबल टू एवरीवन. एंड एज पर द प्राइम मिनिस्टर श्री दैट आत्मनिर्भर भारत, so electricity is an आत्मनिर्भर source of energy. You can renew, it is a renewable source. आप अपना एनर्जी खुद उत्पन्न कर सकते हैं by using solar panel. And there are multiple other sources as well. Whereas when we are using the crude based fuel, petrol, diesel, we are निर्भर, हम लोग किसी एक अदर कंट्री पे निर्भर करते हैं, जिसके जरिए हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं. मीन्स इंपोर्ट करते हैं, हम लोग कर्जा लेते हैं, वो फ्यूल यूज होता है, देश का इकोनॉमी, इन्फ्लेशन काफी हाई हो जाता है. करंटली लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, महंगाई बढ़ गया है, बिकॉज फ्यूल इज अ बेसिक सोर्स. अगर पेट्रोल का कल दाम 200 होता है तो पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा लोगों का. जो बंदा जॉब के लिए जा रहा था, उसका सैलरी अगर 7,000 रुपी था, तब अगर 70 रुपए पेट्रोल का रेट था, आज पेट्रोल 120 रुपए हुआ है, बट वो बंदे का सैलरी 12,000 नहीं हुआ है. सो अगेन इट विल किल द इकोनॉमी.
वो कंट्री के आदमी को ही किल कर रहा है, एंड 120 when we paying it gets to out of the country. But as Greta is supporting the Atmanirbhar source of fuel, and we are very focused on that environmental thing, like we are reducing the carbon footprints. One scooter is equal to the 1,000 trees planted. So you cannot plant 1,000 trees and water every day, but rather using one scooter, you are making the same effect on the earth. So it is how the journey is till now. Over to you. Absolutely. What I would say, like words fall short to just describe your overall journey, sir. Like it's so inspiring, amazing. And the most important key takeaways that students can take from this journey is that always you took a risk in your life and consistency after even facing the failures of getting license rejected for 19 times, but consistency is the key for success. And one of the most important thing, the kind of support that you have got, the kind of grooming that you have got from your family, it's something that is so inspiring and amazing, like a relationship between a young son of the family and his father and grandfather. So all this learning is the one that we really see in your prismatic personality. So it's absolutely an amazing journey, sir. But as you have mentioned about all these challenges, how you have succeed, how you have taken the risk, and every time, even after falling, you just stand up again and again start building your things. It's so inspiring, sir. But as you have mentioned, like whenever we just try to follow anything which is related to our passion, there are many challenges we can face. And as you said, mentioned that curiosity is something that is very important, and it's very important कि हम उस curiosity का cure ढूंढें. So in your case, every time we heard that necessity is the mother of invention, but for you, it's the curiosity and the effort that you have put to cure that curiosity is something very, very inspiring. बट जैसा कि सर आपने ये मेंशन किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम किसी काम बड़े एक प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी एक बड़े सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं पे बीच पे कुछ लूप होल्स भी हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें बहुत अच्छे से सिखाता है कि कैसे लीव का लेटर लिखना है, बट हमें ये पता नहीं होता कि कैसे हम किसी को ऑफर लेटर दे सकते हैं। इट्स अ गेम ऑफ होल माइंडसेट. So basically, sir, in our startup also we have found out that the students are not so skilled as per the needs of the industry. कहीं ना कहीं skill gap है. Like everyone is not the like I would say that हर कोई आपकी तरह नहीं बन सकता, but आपकी जर्नी से जरूर सीख सकता है. तो सर आज जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हमारे इस कॉन्वर्सेशन को कोई गांव में बैठा स्टूडेंट या टीयर 3 स्टूडेंट, सिटीज का कोई स्टूडेंट अगर इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, उसे किस तरीके से अपनी तैयारी करना चाहिए सर, ताकि अगर वो अपने आप को इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए अपना करियर बिल्ड करना चाहता है या जॉब पाना चाहता है या खुद के एक लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहता है, तो आपकी पीस ऑफ एडवाइसेस मुझे लगता है कि काफी वैल्यूएबल होगा उनके लिए. सो प्लीज गाइड द स्टूडेंट कम्युनिटी सर. So, to the friends who are listening this, so mainly whenever you are appearing for an when you are preparing yourself for a job and whatever the role you are applying for, आपको बस एक ही लाइन बोलना रहता है and you get selected there, that nobody can does better than me. अगर for example if I am a peon serving tea to my boss, मेरा एक कॉन्फिडेंस है जो होना चाहिए कि मेरे से अच्छा ये चाय कोई नहीं बना के दे सकता है. अगर इतना कॉन्फिडेंस है आप में तो आपका इंटरव्यू वैसे ही कंप्लीट होगा. एंड अदर थिंग, नेवर यूज अ वर्ड it is not my job. You should respect the person who is giving you the instruction, who is giving you the order, because that person is the higher authority. He is on the higher designation than you, on a higher position, more senior than you. That person knows very well and very clear कि वो क्या ऑर्डर दे रहा है. तो अगर वो बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है ये करने के लिए, it means he had put the trust on you that he will do that, he can do this. तो उतना ट्रस्ट रख के आपको ऑर्डर दे रहा है. यू नो नीड टू अप्लाई योर ब्रेन कि मेरे से तो नहीं होगा सर, मेरे को नहीं आता है. ही नो यू आर अ टीम मेकर, बट ही इज आस्किंग यू टू मेक अ कुरियर. जाओ और कुरियर करके आओ. It's not a thing which should be a part of concern. So we need to be very assured कि हम लोग जो भी टास्क ले रहे हैं ऑन हैंड वो हमें करना है
with the confidence that nobody can does it better than me. And the word which the sentence which I said कि it is not my job, ये मेरी जॉब का पार्ट नहीं है. You need to respect that person. जो बंदा आपको रोजगारी दे रहा है, जो बंदा आपका घर चला रहा है, और abide of that senior person, अगर वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो that he have that trust कि ये बंदा कर लेगा इसको, तो you should try at least. ट्राई तो करिए. अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप कैसे फेल या सक्सीड हो पाएंगे? And if you don't try, how you will learn? If you don't fail, how you will learn? Failure is the best teacher. मतलब ये तो काफी महान पुरुषों, महान पर्सनालिटीज ने बोला है. एंड इन माय केस, कौन ऐसा पागल बंदा होगा जो 19 बार फेल होने के बाद 20वीं बार भी अप्लाई करता है? मतलब पीपल थिंक अबाउट कि पागल आदमी है, लोग 4 बार एग्जाम में फेल हो जाते हैं, 5वीं बार जाता नहीं एग्जाम देने के लिए आदमी. मैं बंदा 1 साल में 19 बार कंटिन्यूस अप्लाई किया. बट इट इज अप टू द प्रायोरिटीज, व्हाट यू वांट. अगर आप सिर्फ बहाने बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन से कह रहे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इट डजंट मीन्स यू नीड टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज. कोरोना था तो प्रधानमंत्री ने काफी अच्छा बोला था, आपदाओं को अवसर बनाना. सो दैट हर्डल्स, दैट ऑब्स्टिकल्स यू नीड टू गेट turn into the opportunities, and it is what an entrepreneur does, which convert the challenges into the opportunities of learning. So and everybody, maybe जो आदमी आज मेरे लिए जॉब के लिए आ रहा है, it's my responsibility as an employer to make him such capable that I will be the first investor of his company. अगर मेरे यहाँ जो बंदा लॉजिस्टिक्स का ऑपरेशंस देख रहा है, वो बंदा अगर कल अपना लॉजिस्टिक्स कंपनी खोलता है, तो मुझे उतना विश्वास है ना कि मैं उसका फर्स्ट इन्वेस्टर बनूंगा उस कंपनी में, कि भाई मुकेश तेरे को कितना फंड चाहिए मैं लगाऊंगा, बिकॉज आई नो दैट हाउ आई हैव नर्चर्ड हिम. यहाँ पे उसको सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं, उसको यहाँ पे सब तरह का ट्रेनिंग दिया है. उसको चाय बनाना भी आता है, उसको पता है आईएएस लेवल का आदमी से कैसे बात करना है, हर एक चीज पता है. बट इट इज सिमिलरली वो एम्प्लॉयर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड एम्प्लॉयर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी निभाएगा जब आप ये वर्ड यूज करना बंद करोगे, सर इट इज नॉट माई जॉब, ये मेरा जॉब नहीं है. वो आदमी क्यों फिर आपको डालेगा? अगर इफ आई नीड टू डेलीगेट समवन फॉर एन आईएएस लेवल मीटिंग, मैंने अगर अपने ऑपरेशंस मैनेजर को वहां भेजना है, तो अगर मेरे को पता है वहां जाके बोल देगा सर इट इज नॉट माय जॉब, तो मेरा क्या वहां पर रेपुटेशन रहेगा कंपनी में? बट मुझे पता है मेरा एक चाय बनाने वाला आदमी है, अगर मैं उसको बोलता हूँ ना कि भाई तुम जाओ उधर, तो मेरे को पता है वो करके ही आएगा. वो चाहे अनपढ़ आदमी है पर वो करके आएगा. तो वो अनपढ़ मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल बंदा है, कि उसको पता है कि अगर मालिक ने बोला तो ये करना है, वो विदाउट अप्लाइंग एनी लॉजिक ही विल गो देयर, एग्जीक्यूट द टास्क एंड कम बैक. तो वही चाय वाला अगर कल बोलता है कि सर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, विल यू बी एबल टू इन्वेस्ट? आई विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टर, क्योंकि उससे अच्छा सीईओ मेरी कंपनी के लिए कोई नहीं मिल सकता है. Whatever you will be doing, you know that I am doing best. अगर मैं स्कूटर्स बना रहा हूँ, I have that confidence. Whatever I am doing the best as possible by me and best of the industry. That confidence I carry and I did everything. मैंने अपने हाथों से वेल्डिंग किया हुआ है, मैंने अपना पार्सल का डिलीवरीज अपने हाथों किया हुआ है, मैंने एक साइकिल फिट करने के लिए मैं अहमदाबाद से उदयपुर गया हूँ बस के अंदर जमीन पे बैठ करके. तो देयर इज नथिंग टू डू विद दैट कंफर्ट जोन. आपको, and if you have that spirit to learn, then it is only possible, else nothing, else nobody can do. You need to make the change in yourself, nobody will do it. A full of positive session, sir. Like all your words, each and every word is full of so much of positivity. I really hope this session is going to be very fruitful and very inspiring for the student community. And thank you so much for giving all your time. It means a lot, sir. It's a power bank session that I could say. You have unlocked the knowledge in a so brilliant way. And thank you once again, sir, for all your time. Yeah, it's my pleasure to be here, and I hope that मेरा इस सेशन से किसी भी अगर एक आदमी का लाइफ में भी ये चेंज का कारण बनता है, सो इट्स इट्स हाईली प्लेजरेबल थिंग फॉर मी कि मेरे कुछ बोलने से या मेरे कुछ कथन से किसी की लाइफ एक चेंज होती है. So it's always pleasurable to be on such platforms where I can able to address the youth and the students. And another thing that I missed up here is that even though and public always appreciate your efforts, there is someone. When I dropped my diploma, I completed my 12th from biology maths both, and then after I got an offer from university. I yesterday completed my final exams, my 8th semester ka exams, and now I will be appearing for my masters, continuing my business activities as well. So
a simple one liner motivator. The one liner is that you should just focus on your goal with perseverance, with constant positive efforts, without worrying whatever the public is speaking about you. Today they will laugh, tomorrow they will discuss, and the day after tomorrow they will follow you. So these are the final statements from me, that people will say anything to you, but you should do whatever you want to do with the best of the intentions, with the best of efforts, and with keeping the perseverance. Perseverance is the key to success. Thanks. Absolutely. Yeah. Thank you. Thank you so much, sir.